السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Over to Zarina. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آمین۔ آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 2، دوسرا پارہ، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 164 سے تلاوت ہوگی۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے آیت 164 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ صدق اللہ العظیم، بارک اللہ فیکم۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 164 سے۔ پچھلی آیت 163 میں ہم نے پڑھے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور الہ تمہارا وہی ایک الہ ہے، ون اینڈ اونلی، جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا شان نزول دیکھیے
کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرک لوگ، مکہ کے جو مشرک تھے، وہ لوگ کہنے لگے کہ ایک اللہ تمام جہان کا بندوبست کیسے کر سکتا ہے؟ How can one Allah take care and look after and create the entire universe? یہ مشرکوں کا کویشچن تھا. اس پر اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نیکسٹ والی آیت نازل فرمائی جو ہے 164. تو کیا تھا ان کا کویشچن؟ کہ اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی یہ ہماری کائنات ہے، such a miraculous magnificent universe، اتنی بڑی کائنات کا صرف ایک اکیلا مالک کیسے وہ سب چیزوں کا خیال کرتا ہے؟ کیا یہ کویشچن کبھی ہمارے دماغ میں آیا، کسی کے دماغ میں؟ ڈو یو ایور تھنک لائک وائز؟ نہیں، ابھی تو نہیں آیا ہوگا، بٹ جب ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، تو مے بی وی وڈ ہیو تھاٹ کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ لکس آفٹر ایوری کریشن، ہے نا؟ اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہمیں نیکسٹ آیت میں فرما رہے ہیں کہ ہاؤ میگنیفیشنٹ اللہ از. دوسری بات کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اٹ از اے تھیوری، isn't it؟ یہ قرآن ہمارے لیے اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، اور اسی قرآن کے اندر ہر آیت، ایوری verse of the Quran. So purposely I don't say verse of the Quran, I say آیت. تو آج یہ جو ورڈ ہے نا آیت، اس کا میننگ ہم سیکھیں گے. یہ آ رہا ہے اسی آیت میں، آیت 164 کہ آیت کسے کہتے؟ آیت کہتے ہیں نشانی کو. آیت کسے کہتے؟ نشانی، the sign. اور جو کچھ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں وہ سب کچھ ہمیں ہمارے یونیورس میں نظر آتا ہے، ہمارے آس پاس دنیا میں، زمین و آسمان کے اندر. we can practically witness each and every ayat of Quran. اسی کا ایک بہترین نمونہ we are going to witness in this ayat number 164. اور آج ہم بہت سارا سائنس پڑھیں گے، بہت ساری جیوگرافی، بہت سارا ہم اسپیس میں جانے والے. تو آج ہماری اسٹڈی ہے پوری پریکٹیکل اسٹڈی اباؤٹ دا اسپیس، دی سائنس، دی جیوگرافی، ایوری تھنگ فرام قرآن. تو آر یو ایکسائٹیڈ ٹو لرن دس؟ جو ہم لوگوں نے اسکول میں پڑھا، ہماری بکس میں پڑھا، کالج میں پڑھا، وہ سب کچھ آج قرآن کی ایک آیت میں ہم لوگ پڑھنے والے انشاءاللہ. اوکے، اینڈ دین یہ ہمارے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے کہ اتنے سالوں میں ہم نے پڑھا وہ سب کچھ ایک آیت کے اندر کیسے ہو سکتا ہے. تو لیٹ اس سی. 1 گھنٹہ بھی شاید ہم کو کم پڑے، بٹ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی انٹرسٹنگ ایز ویل. تو بچوں کے لیے اٹ از گوئنگ ٹو بی این ایگزامپل کہ قرآن از ناٹ ایٹ آل بورنگ. یہ بہت ایکسائٹنگ، انٹرسٹنگ اور نالجیبل بھی ہے. 164 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا بے شک انڈیڈ فی خلق السماوات والارض. بے شک خلقت میں یعنی تخلیق میں، ان دا کریشن، آسمانوں اور زمین کی، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اس کی تخلیق میں، اس کی کریشن میں، واختلاف اللیل، اور اختلاف کہتے ہیں آلٹرنیٹلی آنے کو، آلٹرنیشن، ایک کے بعد ایک آنا. کس کا؟ اللیلی، رات کا، والنہاری، اور دن کا، رات اور دن کا ایک کے بعد ایک
ऑल्टरनेशन में आना, बदल बदल कर आना. वल फुल्की, और क्या है एग्जाम्पल? फुल्की, फुल्की कहते हैं कश्ती, द शिप, चाहे वो बोट हो या शिप हो. अल्लती, वो जो, तजरी, वो चलती है यानी वो बहती है, फिल बहरी, समंदर में. The next example is that of a ship which sails in the sea. बहरी कहते हैं समंदर को. बिमा यनफउन नास, साथ उसके जो वो नफा दे. यनफउ में नफा वर्ड नजर आ रहा है आपको? नून फाइन, नफा, नफा यानी प्रॉफिट. वो जो समंदर में जहाज बहते हैं, वो नफा देते हैं अन्नासा, इंसानों को. वमा अंजलल्लाहु, और जो कुछ नाजिल फरमाया अल्लाह ने, मिनस समाई, आसमान से, मिम्मा इन, पानी से. अल्लाह ताला नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहे. एंड द एग्जाम्पल ऑफ रेन वाटर that Allah subhanahu wa ta'ala sends down from the sky. And what is it? What is there in it? There is fresh rain water. فَأَحْيَا بِهِ, फिर उस पानी से वो क्या करता है? فَأَحْيَا, फिर वो जिंदा करता है, जिंदगी देता है, बिही, साथ उस पानी के, अल अर्द, जमीन को. वो जो बारिश का पानी आता है उससे जमीन जिंदा हो जाती है. बाद मौतिहा, बाद यानी बाद, किसके बाद? उसकी मौत के बाद. जमीन जो सूख जाती है गर्मी में, we see in the summer season the earth becomes dry, so इसका मतलब वो मर जाती है और फिर बारिश के पानी से वो दोबारा जिंदा होती है. That is the रेन साइकिल, लाइफ साइकिल. वबस्सा फीहा, और उसने फैलाए उस जमीन में, अल्लाह ने फैलाए उस जमीन में, मिन कुल्ली दाब्बतिन, हर किस्म के. दाब्बतिन कहते हैं लिविंग बीइंग्स, लिविंग क्रीचर्स, हर तरह के मूविंग क्रीचर्स अल्लाह ने बनाए इस जमीन पर. नेक्स्ट एग्जाम्पल, व तसरीफ रियाही, और फेरना हवाओं का, द चेंज ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ विंड्स. हवा जो होती है उसका डायरेक्शन बदल जाता है अल्लाह के हुक्म से. वस्सहाबिल मुसख्खरी, और बादल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बादलों का, द क्लाउड्स, वो कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, बैन समाई, आसमानों के दरमियान, वल अर्दी, और जमीन के, जमीन और आसमान के बीच में ये बादल अल्लाह ताला कैसे कंट्रोल करते हैं उनको. लआयातिन, बेशक निशानियां है. देखिए ये वर्ड आया इसमें आयातिन, इस पे हम लोग फोकस करने वाले हैं. So indeed, surely, these are the signs. Ayat, signs. For whom? लिकाउमी याकिलून, लिए उस कौम के, लिए उन लोगों के, याकिलून, जो अकल रखते हैं. Those who use their intellect, जो अकल से काम लेते हैं. तो ये आयत अल्लाह सुब्हानो ताला फरमा रहे कि अल्लाह की निशानियों से किसको बात समझ में आती है? अकल वालों को बात समझ में आती है. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आयत. इस आयत में अल्लाह ताला ने किस किस चीज का जिक्र किया है? आई हैव मेड अ लिस्ट हियर, इफ यू कैन सी. चांद आंटी, क्या क्या है इस लिस्ट में जो हमने पढ़ा अभी? नंबर 1 आसमान और जमीन, 2 डे एंड नाइट, 3 शिप्स, 4 रेन वाटर, 5 लिविंग बीइंग, 6 winds, 7 clouds. यस, अल्हम्दुलिल्लाह. अब आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू ताला
نے کیسے جواب دیا ان لوگوں کو جو کہہ رہے تھے کہ کیسے ایک اللہ ان تمام چیزوں کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ان کو جواب دے دیا. اس کے علاوہ ایک اور شان نزول ہے اس آیت کا. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ آیت نازل ہونے کے پیچھے جو ریزن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شان نزول، the reason for the revelation. تو ایک اور ریزن یہ بنا تھا کہ مکے کے جو قریش تھے اس کے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں ایک معجزہ دکھائے. دیکھیں قریش مکے کے جو تھے کیا سارے کے سارے ایمان لائے تھے؟ نہیں لائے تھے، ہے نا. تو وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائے، کوئی میریکل دکھائے تاکہ ہم مان جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے. تو ایک آدمی نے آ کر کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ جو صفا پہاڑ ہے نا، صفا اور مروہ کی جو 2 ماؤنٹنس ہے، تو اس نے کہا یہ جو صفا پہاڑ ہے نا یہ پورا پہاڑ سونے کا بن جائے. It should turn into gold. اگر یہ پہاڑ سونے کا بن جائے اور ہم اس سے گھوڑے اور ہتھیار وغیرہ خریدے تو یعنی وہ سونا ہم بیچیں گے، پھر ہم اپنا فائدہ اٹھائیں گے، خوب گھوڑے خریدیں گے، ویپنز خریدیں گے، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he was so kind and merciful، اور وہ اتنے معصوم تھے کہ انہوں نے کہا اچھا اگر میں یہ وعدہ تمہارا جو ہے معجزہ میں دکھا دوں تو کیا تم لوگ ایمان لاؤ گے؟ ڈو یو پرومس می؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میری ساتھ میری پوری قوم بھی ایمان لے آئے گی اگر آپ ہمیں یہ معجزہ دکھا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دو. جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کے حکم سے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا قبول کی جائے گی، لیکن there is a condition. اگر یہ لوگ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لے آئے، اگر یہ لوگ اپنے وعدے سے پلٹ گئے تو ان سب پر اللہ کا وہ عذاب آئے گا، ایسی پنشمنٹ، ایسا عذاب آئے گا جو آج سے پہلے کسی پر نہیں آیا، ایسا عذاب ان پر آئے گا. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی shivered، literally کانپ اٹھے، اور انہوں نے عرض کیا نہیں یا اللہ نہیں، تو انہیں ایسا کوئی معجزہ نہ بتا، تو انہیں ایسے ہی رہنے دے اور میں انہیں تیری طرف بلاتا رہوں گا، میں انہیں اسلام کی طرف تیری طرف بلاتا رہوں گا. ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ لوگ کبھی نہ کبھی تیری طرف جھک جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس پر یہ آیت اتری کہ ان لوگوں سے کہو کہ کیا اللہ سے معجزے مانگتے ہو؟ اگر معجزہ دیکھنا ہے تو اپنے ارد گرد look in your surrounding, look at this universe, look into the nature، تمہیں سارے معجزے نظر آ جائیں گے. تو یہ اس آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ذرا دیکھو تو کہ کیسے ہم نے یہ زمین اور آسمان کو بنایا. جسٹ لک ایٹ اٹ. اور آپ کو پتا ہے کہ زمین اور آسمان کیا کسی نے پورا کا پورا دیکھا ہے آج دن تک؟ 100%. Has anybody seen
पूरी जमीन और पूरा आसमान किसी ने देख लिया है आज दिन तक? नहीं. अगर हम इसे सिर्फ देख ही नहीं सकते हैं तो हम सोच भी कैसे सकते हैं कि कोई जमीन और आसमान को बनाए जैसे अल्लाह ने बनाया? और कुरान पाक में क्या आता है कि कितने दिनों में अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को बनाया? पता है 6 किसी को? 6 यस, दौर में. वेरी गुड. तो वो 6 days नहीं, बट फॉर अल्लाह सुब्हानहू ताला इट इज लाइक 6 stages. अल्हम्दुलिल्लाह. तो अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए ये इतनी बड़ी जमीन और इतना बड़ा आसमान बनाना कोई मुश्किल नहीं है. क्या आपको पता है कि हमारा ये जमीन और आसमान कैसा नजर आता है इन द फ्रॉम द स्पेस? ये अपनी अनम ने शेयर किया है मेरे साथ एंड इट वाज ऑन हर इंस्टा कि कितने सारे स्टार्स है. आपको पता है इन द यूनिवर्स कितने सारे स्टार्स है? ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसमें हर डॉट, एवरी डॉट इज अ स्टार. आपको पता है ना हमारा सन इज अ स्टार. तो हम द सन इज अ स्टार और हमारे जो प्लैनेट्स है अर्थ वगैरह दे आर अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. वैसे हर स्टार का एक सिस्टम होता है और यहाँ पर आपको नजर आ रहे एवरी डॉट इज अ स्टार. दैट मीन्स कितने सारे स्टार्स अल्लाह ने बनाए तो उतने सारे प्लैनेट्स है. अल्हम्दुलिल्लाह. हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ये अल्लाह की जो कायनात है ये कितनी बड़ी कायनात है. इसके बाद आप सेकंड पोर्शन में आ जाइए. एवरी डॉट इज अ गैलेक्सी. या अल्लाह, गैलेक्सी के अंदर कितने स्टार्स है और उसके अंदर कितने मिल्की वेज है, हमारे सोच और समझ के बाहर. और ये जो थर्ड पोर्शन है वेयर इट इज सेड एवरी बबल इज अ यूनिवर्स. तो हर बबल एक यूनिवर्स है. तो कितने यूनिवर्स जो अल्लाह ने बनाए. सुभान अल्लाह. कैन यू इवन इमेजिन? अनम, जज़ाकल्लाह फॉर शेयरिंग दिस पिक्चर विद अस. तो ये देखकर आपको क्या फील होता है? It's like हम सोच भी नहीं सकते. When in school we used to be taught कि Earth is a planet and Pluto is a small planet, इसके लिए उसको निकाल दिया सोलर सिस्टम से. But Pluto itself is so big for us. और अपना एक गैलेक्सी अपने को इतना बड़ा लगता है. तो इमेजिन अल्लाह ताला ने ऐसी कितनी गैलेक्सी. एंड व्हेन आई सॉ दिस फोटो, मैं लिटरली आई वाज इन ऑ. लाइक आई वाज थिंकिंग कि वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि व्हाट पावर अल्लाह ताला हैज. we can't even think what he has thought, the way he has created everything. And ये जो आयत है, I don't know if you guys have seen, एक revert है. There's this Australian guy, he मतलब he saw all the religions and he was not able to decide कि सही religion कौन सा है. And then he started learning the Quran. एंड उसके दिल में थोड़ा थोड़ा बैठते क्या कि हाँ, he felt like Islam is the right religion. And he, like, when he was explaining his story, he says that I came to this verse and then I got frustrated and I made a dua to Allah Ta'ala that Allah Ta'ala please show me a sign, and if this is the right religion for me, show me a sign. And then he opens the Quran and the next verse that he reads is this particular verse that we are studying today. And then he sees that मतलब जो यकीदा करने वाले उनके लिए निशानियां है, बस आपको देखने की जरूरत है. So that was such a heart touching moment, like when I heard his story and now we're studying this ayat. So like I think we all should like ponder upon the creations of Allah Ta'ala and just imagine कि मतलब हर चीज हमारे आंखों के सामने है. बस we just need to realize and थैंक अल्लाह ताला कि एक इतने बड़े यूनिवर्स का एक अल्लाह ताला ने हम लोग को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि अल्लाह ताला हमें उनकी जन्नत में डालना चाहते हैं. बस वी नीड टू ट्राई एंड डू आवर बेस्ट फॉर इट. वेरी वेल सेड. अल्हम्दुलिल्लाह. अनम माशाल्लाह, हार्डली शी इज 24 to 25 year old. अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सालों से उसको कुरान अमेजिंग लगता है और वो
on and off sunti hai, and she ponders upon it. Alhamdulillah, and she spreads the word through her Instagram account, and we will share it in the group. जो भी उसके Instagram account को follow करना चाहे, so that you get motivated, and इस तरह वो हमें और सिखाती रहे इंशाल्लाह. This was also shared by her कि देखिए ये एक हेलिक्स नेबुला है and it exactly resembles a human eye. कैसे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने निशानियां हमको मौजज़े बताए हैं इस यूनिवर्स में. यहाँ पर सेकंड पोर्शन में आप देखते हो ब्रेन सेल्स, कि हमारा दिमाग जो है उसके अंदर जो सेल्स है वो कैसे नजर आते, उसके बाजू में बताया है कि द यूनिवर्स लुक्स एग्जैक्टली रेप्लिका ऑफ दोज ब्रेन सेल्स. अल्हम्दुलिल्लाह. तो अल्लाह सुब्हानहू ताला की ये कायनात को जितना हम देखे उतना हमारा दिमाग दंग रह जाता है, astonished by the magnificent creations of Allah Ta'ala. ये देखिए यहाँ पर सबसे नीचे आप देख रहे हो कि एक जो पत्ता होता है, लीफ ऑफ अ प्लांट, एक प्लांट का पौधे का पत्ता, उसके अंदर जो वेन्स है वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी वेन्स है, खून की नलियां. और यहाँ पर लास्ट में आप देख रहे हो द रिवर नेटवर्क, कि कैसे हमारी पूरी दुनिया में नदियां बहती है. Aren't they similar, Chand aunty? The last portion, Yes, doesn't it amaze you? very leaves us ekdam stunned. Spellbound. Alhamdulillah. तो ये है हमारा दिल, हमारी जबान ये कहे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ग्लोरी बी टू अल्लाह, कि कौन अल्लाह के सिवा हमारी कायनात को जिसने ऐसे बनाया है, तो अल्लाह के सिवा वो और कौन हो सकता है. फिर हम देख रहे हैं कि जमीन और आसमान के बारे में. उसके बाद आया रात और दिन. अब जमीन और आसमान तो ऐसी जबरदस्त चीज है कि बस देखते जाओ, और उसी के अंदर हर रोज हम ये मौजज़ा एक्सपीरियंस करते हैं. वी एक्सपीरियंस दिस मिरेकल ऑफ द ऑल्टरनेशन, द चेंज ऑफ डे एंड नाइट, रात और दिन. तो ये हम पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में कि कैसे अर्थ रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ, है ना. जमीन अपने इर्द गिर्द घूम रही है, और आधा पोर्शन जो सन को फेस करता है, द वन हाफ ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन, वहां पर दिन होता है, और दूसरा आधा हिस्सा वहां पर रात होती है. तो जैसे अभी आप लोग इंडिया में हो एंड इट इज नाइट टाइम देयर, ऑलमोस्ट 10 o'clock, और मैं यहाँ लंदन में हूँ और यहाँ पर अभी ऑलमोस्ट 4:30 बजे है. तो अभी तक यहाँ पर दिन है, मगरिब हुई नहीं है. तो आप देख रहे हो कि कैसे जमीन के एक हिस्सा उसमें दिन है और दूसरे आधे हिस्से में रात है. और फिर जब अर्थ रोटेट्स, तो इतने बड़े जमीन को अल्लाह सुब्हानहू ताला गोल घुमा रहे, जैसे एक बॉल को हम लोग घुमा रहे होते हैं, एंड इट रोटेट्स अल्लाह के हुक्म से कंटिन्यूअसली. और ये सूरज है जबरदस्त, हमको लाइट देते ही जा रहा है. और ये चांद का घटना और बढ़ना, इस तरीके से हमारे दिन और रात और साल और महीने बदलते जाते हैं और सीजन्स चेंज होते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. और इसी का इफेक्ट होता है समंदरों पर भी. और आप सोचिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की क्या शान है कि उसने हमारे लिए दिन और रात बनाए. आप सोचिए अगर सिर्फ दिन ही दिन होता और हम सोते कब, हम तो थक जाते, और ये जो रात आती है फिर हमारा सारा काम खत्म हो जाता है. एंड देन यू गेट अ पीसफुल नाइट स्लीप, क्योंकि अंधेरा छा गया है, आपके एनर्जी लेवल्स आर ऑल डाउन, योर वर्क इज डन. तो आधा दिन हमारे लिए काम के लिए, आधा सोने के लिए है. अल्लाह ताला ने कितना अच्छा बैलेंस किया है. फिर कभी समर्स में दिन बड़े होते हैं और विंटर्स में क्या होती है, रातें बड़ी होती.
अल्हम्दुलिल्लाह. तो अल्लाह का जो निज़ाम है, this is only because of the wisdom and intellect of Allah subhanahu wa ta'ala, कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये इंतजाम किया है. क्या हमें अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए कि अगर ये रात नहीं आती तो हम कैसे सोते और कैसे हमारी थकन खत्म होती और कैसे हम नेक्स्ट डे वापस रिफ्रेश्ड उठते. अल्हम्दुलिल्लाह. वैसे ही हमारी जिंदगी है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी खुशी कभी गम. So there is a hope. Every morning is a hope for a new day, for a new beginning. अल्हम्दुलिल्लाह. ये अल्लाह की इतनी बड़ी शान. हमने इसे स्कूल डेज में पढ़े थे अबाउट द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, और कैसे अल्लाह की ये पूरी यूनिवर्स. सूरह यासीन में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जमीन, सूरज, जमीन, चांद, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाए और वो अपने ही दायरे में तैर रहे. दे आर फ्लोटिंग इन देयर ओन ऑर्बिट्स, और कोई भी अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं निकलता. सो कैन यू सी दिस कि सूरज इज द सेंटर एंड every planet is revolving around the sun in their own orbit. कोई अपनी ऑर्बिट से बाहर नहीं जाता, कोई अपनी स्पीड से ज्यादा नहीं निकलता. हर एक अल्लाह का फर्मा बरदार है. नाउ द क्वेश्चन मार्क इज कि अगर इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा सूरज, हर प्लैनेट, हर स्टार अल्लाह का फर्मा बरदार है, देन व्हाट अबाउट यू एंड मी? हमारे बारे में क्या, कि क्या हम अल्लाह के ऐसे ही फर्मा बरदार है? नहीं. Yes, we have to answer ourselves. और ये देखकर हर आयत से हमें क्या करना है? हिदायत लेनी है इंशाल्लाह. The next point in our list is, हम पढ़ रहे हैं ये वाली लिस्ट जो इस आयत में है. तो हमने देख ली आसमान और जमीन जबरदस्त, फिर दिन और रात का आना और जाना. इसके बाद हम देख रहे हैं व्हाट इज नंबर 3 चांद आंटी? कश्ती का और बहना. यस. तो हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कैसे नूह अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कश्ती बनाना सिखाई थी, याद है ना? एंड दैट वाज द फर्स्ट शिप. Allah subhanahu wa ta'ala guided him how to construct a ship, taught him these are the basic life skills. और अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि कैसे this is economically beneficial. It is beneficial for the business and trade in the entire universe. पूरी दुनिया में आप देख लो, क्योंकि earth is covered by water. How many % of earth is covered by water? Tell me. 70%. 71%. Yes. तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पहुंचने के लिए, है ना, अल्लाह ताला ने ये रूट हमको बता दिया, और वो क्या है? द वाटरवेज. और इतनी बड़ी शिप, आप देखिए ये कितनी बड़ी शिप है कि उसके ऊपर एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स भी लैंड करते हैं, और उसके ऊपर हेलीपैड भी होता है, और कितने लैक्स ऑफ टन्स का सामान वो अपने ऊपर उठाकर तैरती है और लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है. सो इजंट दिस, इन तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ने क्या फरमाया? यनफ़उ, इसमें नफा है. तो क्या ये निशानी हमारे लिए एक मिरेकलस निशानी नहीं है कि इतना वजन लेकर वो जहाज पानी में डूबता नहीं, अल्लाह ताला उसे फ्लोट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इट मूव्स फॉरवर्ड विद द, whether it is a technology or with the winds or with the tides or with the movement of water. अल्हम्दुलिल्लाह, ये टेक्नोलॉजी आज बनी है, लेकिन पहले क्या होता था कि वो हवाओं से पानी के ऊपर वो फ्लोट करती थी.
एंड पहले वो लकड़ी के चप्पू यूज करते थे, उससे बोट चलती थी, देन स्लोली द मोटरवेज, एंड नाउ द टेक्नोलॉजी इज मूविंग अहेड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अपने आप में इतनी बड़ी निशानी है या नहीं, बताओ? Do we realize it when we are onto a ship or a boat? Yes, alhamdulillah. अभी ये वाला देखिए आप, इतना बड़ा casinos, there are hundreds of casinos on this ship. और what happens in the casinos? They earn money. अब वो हमारे लिए भले हराम है, but they are earning money on this. So Allah Ta'ala said कि this is a mode of earning money. Alhamdulillah. अच्छा, अभी और कितनी निशानियां चाहिए तुमको कि तुम अपने रब को पहचान सको? अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे लिए आसमान से पानी बरसाते हैं. हाउ डज इट रेन? ये हम पढ़ चुके हैं स्कूल में, isn't it? How does it rain? About the Water rain cycle. cycle. water cycle. वेरी गुड, वाटर साइकिल. तो हम हमारे बच्चों को ये बता सकते हैं कि देखो वाटर साइकिल सिर्फ कुरान में नहीं, it is mentioned in not only in your books but it is mentioned in the Quran as well. मैं जब छोटी थी, my mother used to tell me कि कुरान जो है वो साइंस है, और मैं कहती थी कैसे मम्मी, कुरान कैसे साइंस है? मुझे तो नहीं लगता ऐसे, क्योंकि हम तब कुरान सिर्फ अरबिक में पढ़ते थे और कुछ समझ नहीं आता था. तो अल्लाह सुब्हानहू ताला सेज कि तुम्हारे क्वेश्चन मार्क का आंसर इज इन दीज आयात, तो तुम्हें उसे समझना होगा. और अल्हम्दुलिल्लाह टुडे व्हेन वी लर्न इट एंड व्हेन वी आर टीचिंग इट एंड डिस्कसिंग इट, आई एडमायर अल्हम्दुलिल्लाह माय मदर एज वेल, कि वो जब कहती थी कि कुरान में साइंस है, इंडीड कुरान में सिर्फ साइंस ही नहीं, कुरान के अंदर साइंस है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर साइकोलॉजी है, इसके अंदर जूलॉजी है, बायोलॉजी है, एनाटॉमी है, इसके अंदर इकोनॉमी है. कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अल्लाह ने इसमें टच नहीं किया? अल्हम्दुलिल्लाह. एंड देन बारिश का जिक्र हो रहा है. अभी क्या मुझे आपको बारिश भी बतानी पड़ेगी? क्या आप लोगों ने बारिश नहीं देखी? अभी बारिश का सीजन जस्ट खत्म हुआ है. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बारिश कैसे बरसाता है अल्लाह? आसमान से बारिश का बरसना, जिसको हम कहते हैं अरे बाप रे बारिश आ गई, अभी क्या होगा, पूरा बम्बई फिर से डूब जाएगा, गटर्स भर जाएंगी, गाड़ियां तैरने लगेगी. आजकल हमारी प्रॉब्लम ये हो गई है कि वी आर स्कैर्ड ऑफ रेनफॉल, लेकिन बारिश जो है ये अल्लाह की रहमत है, बिकॉज द रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, इट इज द सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. क्योंकि बारिश से पहले कौन सा सीजन आता है? समर. और समर में क्या होता है चांद आंटी? उस धूप की शिद्दत की वजह से सूख जाता है, ड्राई हो सब जाता कुछ सूख जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो सब सूख जाते हैं, और जमीन बिल्कुल सूखी नजर आने लगती है, क्रैक्ड हो जाती है. फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या करते हैं, वही धूप से जो इवापोरेशन होता है, जमीन पर 71% पानी जो है वो पानी धूप की वजह से इवापोरेट होता है. फिर इवापोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन एंड देन कंडेंसेशन, इस तरीके से वो पानी ऊपर भाप बनकर उसके बादल बन जाते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. और अल्लाह सुब्हानहू ताला उसी पानी को बिल्कुल प्योर फॉर्म में फिर से नाजिल फरमाते हैं, और जब वो पानी बरसता है तो जमीन जो सूख गई होती है पूरी ड्राई, इट्स लाइक अ डेड अर्थ, सूखी, यहाँ पर वर्ड भी अल्लाह ने यूज किया बाद मौतिहा, उस जमीन के मुर्दा होने के बाद अल्लाह ताला उसे फिर से उसी रेन वाटर से रिफ्रेश कर देते हैं. एंड देन यू कैन सी हरी भरी छोटी छोटी घास उगने लगती है, और सारे माउंटेन्स एंड हिल्स, एंड देन यू सी द वाटरफॉल्स. अल्हम्दुलिल्लाह. फिर नदियां भरने लगती है और तालाब भर जाते हैं, हमारे डैम्स भर जाते हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह जमीन फिर से
लहलहा उठती है. देन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जमीन में हर तरह के जानदार, एनिमल्स, क्रिएशन, अल्लाह की एवरी लिविंग क्रिएशन हमने बनाई. तो वो कहाँ है? आइदर जमीन के ऊपर, दैट इज टेरेस्ट्रियल, या पानी के अंदर, उसको क्या कहते हैं? एक्वेटिक. कुछ एम्फिबियंस है, कुछ हवा में है, एरियल, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. ऐसे ऐसे अल्लाह ने हमारे साथ, कुछ तो ऐसे है कि आप बस देखते रह जाओ. कैन यू सी इट ऑन द स्क्रीन? Yes. It is a snake, but it is so beautiful. Isn't it? तो अल्लाह की जो शान है, अल्लाह की जो क्रिएशन है, it is so unique and amazing. Alhamdulillah. Can you see? I could just share a few with you. आप लोगों ने भी देखे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह सुब्हानहू ताला चाहते हैं कि हम सिर्फ कुरान ही ना पढ़े, अपने आसपास जितनी निशानियां देख रहे हैं उन पर गौर व फिक्र करे. पॉन्डर अपॉन द क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला, कि ये हर जानवर जो है उसे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उसके लिए एक अलग हैबिटेट बनाया है. उसके खाने पीने का, रहने सहने का अंदाज हर एक का अलग है. Isn't it? Haven't we studied this in school? Tell me. In colleges? जी बाजी. Yes. So अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सब कुछ किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया. और इन सब को पाल कौन रहा है? अल्लाह सुब्हानहू ताला. उनको खिलाना, पिलाना, उनका ऑक्सीजन, उनका रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, हर एक का लाइफस्टाइल अलग है, हर एक का हैबिटेट अलग है. अल्हम्दुलिल्लाह. इन सब को जिसने पैदा किया वही इन सब को पाल भी रहा है, नरिश भी कर रहा है. और उनकी नंबर कितना है, उनका क्वांटिटी कितनी. अभी हमने देखे कि वो जो सूरज, चांद, सितारे इतने हैं, तो फिर हम इंसानों का क्या. तो उसमें इतनी पूरी बड़ी यूनिवर्स में वेयर डू आई स्टैंड? एज अनम राइटली सेड कि इतनी पूरी क्रिएशन में मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ. तो फिर मैं हूं कौन? फिर मैं किस चीज पे इतराती हूँ? एंड हाउ डू आई चैलेंज द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला. इस पूरी कायनात में आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ नजर आ रही हूँ. अगर ये इतने सारे तारे नजर आ रहे हैं इस यूनिवर्स में और जमीन इतनी बड़ी है, वेयर डू आई स्टैंड? मेरी हैसियत क्या है? कुछ भी नहीं. इसके अलावा आप देखिए कि कैसे कैसे पहाड़ बनाए अल्लाह ने. हैव यू सीन सच माउंटेन्स? हम समझते हैं कि एक ही तरह के माउंटेन्स है, हमारे यहाँ जैसे ब्राउन नजर आते हैं. ये ऐसे माउंटेन्स भी होते हैं. अगर आप मक्का मदीना जाते हो, यू सी कि पूरे सिर्फ रॉकी माउंटेन्स है. सो अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को हम झुटला सकते हैं? जिन्नात का तो पता नहीं, बट हम इंसान, क्या हम अल्लाह की किसी नेमत को झुटला सकते हैं? बताओ. नहीं, बिल्कुल नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह. इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू ताला आगे फरमाते हैं कि ये आसमान से पानी बरसाना ये कैसे होता है. इसके बारे में भी आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वतस्रिफिर रियाही, और ये फेर फेर कर लाना हवाओं का. We have studied about winds, the westerlies and the easterlies and the strong winds and the winds coming from the seaside towards the earth and the winds from the earth towards the seaside. और जब मैं ये पढ़ती थी तो मैं सोचती थी कि ये कौन इनको मेजर करता है, कैसे पता चलता है कि ये विंड कहाँ से शुरू हुई, किस डायरेक्शन में जा रही है, अब इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं कि ये हवाओं का रुख बदलना ये किसके कंट्रोल में? ओनली अल्लाह कैन कंट्रोल इट. देन
about the clouds, बादलों का जिक्र किया अल्लाह ने. अभी हमने क्या देखे कि हवा जमीन का पानी भाप बनकर जो आसमान में उड़ता है और फिर उसके क्या बनते हैं, बादल. सो वो बादल फुल ऑफ वाटर, वो जमीन और आसमान के बीच में अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे उसको कंट्रोल किए होते. और ये जो हवाएं चलती है वो उन बादलों को पुश करती है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन. एंड जहां पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्जी होती है कि बारिश बरसाए, वहां तक अल्लाह के हुक्म से, विद द परमिशन ऑफ अल्लाह, ये हवाएं उन बादलों को ढकेल ढकेल कर वहां तक पहुंचाती है जहां पर उसे अल्लाह ने बरसाना है. एंड देन अल्लाह के हुक्म से वो बादल वहां पर बरसते हैं और फिर उस पोर्शन में बारिश होती है. अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत में हमें बता दिया. एंड बाय द एंड अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक ये सारी आयात, ये निशानियां, दीज लेसन्स, प्रैक्टिकल लेसन्स किसके लिए है, लिकौमी या अकिलून, उन लोगों के लिए जो अकल का इस्तेमाल करते हैं. इसके लिए जो अकल का इस्तेमाल करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. तो एक पल का गौर व फिक्र, एक पल हमने अभी गौर व फिक्र किया, isn't it? Didn't we ponder upon the signs and miracles of Allah Ta'ala, the powers of Allah. तो ये जो हमने थोड़ा सा गौर व फिक्र किया, ये पूरी रात के नफिल इबादत से बेहतर है. क्या हम लोग ये करते हैं एवरी डे? डू वी पॉन्डर अपॉन द नेचर? कभी देखते हम लोग तो बोलते हैं हाँ रात हो गई, मगरिब पढ़ लो, अभी दिन हो गया, फजर पढ़ लो, हो गया, अभी स्कूल का टाइम हो Baji, गया, we take it स्कूल for चले granted. जाओ. We take it for granted. Do we learn lessons from this every day? No. जब हम सैड होते हैं, किसी बात पे डिप्रेस्ड है, if you are depressed for some reason, तो क्या आप देखते हो बाहर कि एक पौधा जो पूरा सूख गया था, अभी क्या हुआ, वापस उसमें से एक पत्ता फूटा है और अब वो धीरे धीरे पूरा ट्री ग्रीन हो गया है. सिमिलरली in my life I should take a lesson कि अगर आज मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से फिर एक नया सवेरा आएगा. There is a hope. अल्लाह से हमेशा क्या रखनी है, हमें अच्छी उम्मीद रखनी है कि जैसे रात के बाद नया दिन होता है, वैसे ही मेरी जिंदगी में भी इस मुश्किल के बाद एक आसानी जरूर होगी इंशाल्लाह. यही अल्लाह का निजाम है. अकल के बारे में आता है कि अकल का मतलब क्या होता है. हम लोग क्या समझते हैं अकल का मतलब क्या है, बताओ जल्दी से. वी हैव टू पॉन्डर अपॉन दिस वर्ड या अकिलून. क्या मतलब होता है अकल का? एनीबॉडी? Baji, the ability to do the correct thing at the right time. दैट इज विजडम. उसको कहते हैं हिकमत. ओके, वेल ट्राइड निशात, बट दैट इज विजडम, हिकमत. हम बात कर रहे हैं अकल की. हाँ आयशा, मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ सो दैट आप भी सोचे. हाँ आयशा. आपने शायद बताया था कि वो जो अरब्स अपनी कैप पे पहनते हैं, वेरी गुड, you're very close आयशा. से वो बांधने. Yes, very good. Alhamdulillah. Aisha is right. अकल कहते हैं उस, जैसे एक ऊंट को बांधा जाता है, टू टाई डाउन, ओके, टू होल्ड बैक. तो किसी चीज को बांध कर रखने को कहते हैं अकल. ये अरबिक वर्ड है. लेकिन क्या चीज को बांध के रखना है वो हमें सोचना है कि you have to tie down your emotions, you have to tie down your desperation. कंट्रोल करना है हर चीज को हमें. ये नहीं कि मुझे इस वक्त गुस्सा आ रहा है तो मैं गुस्से को अपने अकल पर, अपने दिमाग पर असर होने दूं और उसके हिसाब से फैसला करूं.
So while taking any decision, you have to control your anger, your jealousy, your desires, your happiness. Control all of this and then make the right use of your brain and your knowledge. ठीक है, तो ये क्या होता है, you have to think clearly. हमारे दिमाग में जो गार्बेज है, वो गार्बेज कैसा गार्बेज है, प्री ऑक्यूपाइड. पहले से जो हमारे दिमाग में चीजें होती है, हम उसी के बेसिस पर कोई फैसला करते हैं. तो वो पहले से प्री ऑक्यूपाइड यूजलेस गार्बेज को निकाल कर बाहर फेंकना है और नए सिरे से अपने दिमाग को रिफ्रेश करके सोचना है. और इसीलिए कुरान हेल्प्स अस to use our brains, to use our intellect. या अकीलून, क्योंकि कभी आयतें आती है जमीन और आसमान के बारे में, कभी आयतें आ रही होती है अल्लाह के जिक्र के बारे में, कभी आयतें आ रही होती है झूठ बोलने के बारे में, कभी आ रही होती है मर्डर के बारे में, कभी आ रही होती है निकाह के बारे में, कभी तलाक के बारे में. तो अल्लाह सुब्हानहू ताला टॉपिक को चेंज कर करके हमारे ब्रेन को बिल्कुल रिफ्रेश कर रहे होते हैं. And then you think with a new fresh idea about it. और तब आप उस पर डीप अंडरस्टैंडिंग के बारे से सोच सकते हो. You think with a deep understanding and start pondering upon it. अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की बहुत सारी हिकमतें हैं जो हमें कुरान से सीखनी है. अल्लाह ताला हम सबको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक ही रोट मोड में पढ़ने के से बचाए, जो हमारे स्कूल और कॉलेजेस में होता है कि हमको एक बुक दे दी जाती है एंड यू जस्ट हैव टू रीड इट एंड लर्न इट बाय हार्ट एंड अपीयर फॉर एग्जाम्स एंड बस हो गया. ये नहीं, अल्लाह ताला फरमाते कि तुम कुरान में कोई चीज ढूंढ रहे हो, तुम्हें अगर नजर नहीं आती तो हदीस में ढूंढो. हदीस में अगर तुम्हें वो बात समझ नहीं आ रही तो नेचर में देखो, नेचर से बात समझ में आ रही है, देन अगेन कम बैक टू कुरान, then go to Allah, then see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने हमको इसके बारे में क्या बताया. Alhamdulillah, we have a good chart here shared by Zarina. If you can read it for us कि क्या क्या हम कुरान में पढ़ते हैं. This is looking very good. Alhamdulillah, जरा पढ़िए. Yes, Baji. Word in Quran, Surah Al-Qalam, literature, Surah Maida, food industry, Surah Anfal, marketing, Surah Yusuf, history, Surah Ar-Rad, geography, Surah Ibrahim, time management, Surah Mashallah, time management in Surah Ibrahim. Very good. Surah Maryam, gynecology, Surah Rahman, physics, Surah An-Naba, breaking news, Surah Talaq, marriage bureau, Surah Ash-Shura, poetry, Surah Ash-Shuara, consultation, Surah Az-Zukhruf, chemistry, Surah Shams, Surah Najm and Surah Qamar, astrology, Surah Mutaffifin, justice, equality, Surah An-Nur, lifestyle, basic etiquette, Surah Teen, botany, Surah Nahl, zoology, Surah Alaq, embryology. माशाल्लाह, देखिए आप कुरान के अंदर हम क्या कुछ नहीं सीख रहे, क्या कुछ नहीं पढ़ रहे. अल्हम्दुलिल्लाह, यही अल्लाह सुब्हानहू ताला हमसे फरमा रहे हैं. और जब एक बंदा इस तरीके से सारा नॉलेज हासिल कर रहा होता है तो हमारे लिए खुशखबरी है. मैं आप लोग को एक हदीस पढ़कर सुनाती हूँ कि जब हम ये पढ़ रहे हैं यहाँ बैठकर, तब क्या होता है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है, मैंने एक सहाबी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि जो शख्स इल्म के रास्ते में निकले, वन हु इज इन सर्च ऑफ नॉलेज, जो शख्स इल्म के रास्ते में निकले, अल्लाह सुब्हानहू ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं. और फरिश्ते क्या करते हैं, फरिश्ते
कितने फरिश्ते? जमीन से लेके आसमान तक के फरिश्ते। वो क्या करते हैं? वो तालिबे इल्म के लिए, यानी स्टूडेंट ऑफ नॉलेज के लिए, उसके अमल से खुश होकर अपने पर उस पर बिछा देते हैं। क्या करते हैं? उसके लिए अपने पर बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह। एक और हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते ढूंढते रहते हैं। फरिश्ते ढूंढते रहते हैं। किसे ढूंढते रहते हैं? इल्म की मजलिस को। फरिश्ते ढूंढते रहते हैं इल्म की मजलिस को, फिर वहां जमा हो जाते हैं। सारे फरिश्ते वहां जमा हो जाते हैं। पहले आसमान से लेके 7वें आसमान तक के फरिश्ते जमा हो जाते हैं, और ये फरिश्ते इतने शौकीन होते हैं इल्म के कि वो अपने पर बिछा देते हैं तालिबे इल्म पर, यानी उस पूरी जमात पर। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए खुशखबरी ये है कि जब हम ऐसी मजलिस में बैठकर अल्लाह की किताब पढ़ रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इमेजिन कीजिए कि मेरे सर के ऊपर से और आपके सर के ऊपर से आसमान तक के, 7वें आसमान तक के फरिश्ते जमा होकर अपनी अल्लाह की रहमत बरसा रहे होते हैं, अपने पर बिछा देते हैं हम पर। अल्हम्दुलिल्लाह। और क्योंकि हम पिछले आयत में पढ़ चुके थे कि हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं इस महफिल में, तो अल्लाह सुब्हानो ताला हमारा जिक्र फरमाते हैं कौन सी महफिल में? फरिश्तों की। फरिश्तों की महफिल में। अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हम अल्लाह की किताब का इल्म हासिल कर रहे होते हैं तो हम उतने इल्म के आलिम बन जाते हैं। तो एक और खुशखबरी है हमारे लिए कि हम अल्लाह के इस कुरान के थोड़े से इल्म के आलिम बन गए हैं, स्कॉलर बन गए हैं। तो इसके बारे में भी एक हदीस मिलती है कि उलेमा, दैट इज द प्लूरल ऑफ आलिम, द स्कॉलर्स, उलेमा अंबिया के वारिस है। दैट मीन्स द स्कॉलर्स आर द वारिस ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स। और अंबिया अपने विरसे में, विरासत में माल दौलत नहीं छोड़ते, दिरहम और दिनार नहीं छोड़ते, वो तो दीन छोड़ जाते हैं। क्या छोड़ जाते हैं? दीन छोड़ जाते हैं। तो हम में से कितने लोग ये चाहेंगे कि हम अपने नबी के दीन के वारिस बन जाए? क्या हम अपने नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के वारिस बनना चाहते हैं? Do you want to be the heir too? Of course, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसके लिए हमें क्या करना है? इसी तरह अल्लाह के इस किताब का इल्म हासिल करते रहना है, उस पर अमल भी करना है और उस पर गौर व फिक्र करना है। एक पल का गौर व फिक्र किससे बेहतर है? हमने पढ़ा अभी। किसी ने नोट डाउन की वो हदीस? एक पल का गौर व फिक्र पूरी रात की इबादत से, पूरी रात की नफिल इबादत से बेहतर है। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थी हमारी आयत, एंड आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स दैट वर मेंशन्ड इन दिस। यस, तो ये है कि कुरान is a theory and the कायनात is the practical। इस पे हम गौर व फिक्र करेंगे। आपको पता है कि कितनी बड़ी ये कायनात है और कायनात के अंदर क्या क्या है। एक हदीस जो हमें मिलती है, आपने मेराज का वाकया सुना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात जब जिब्रील अमीन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो ले गए आसमान में, और जब आसमान का पहला दरवाजा खोलना था तो जिब्रील अमीन ने नॉक किया। तो आपको इस बात से क्या समझ आता है कि आसमानों के अंदर दरवाजे हैं, क्या हमें नजर आते हैं? तो जब वो दरवाजा नॉक किया गया
تو فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ جبریل امین نے کہا میں جبریل، دروازہ کھولو۔ تو کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے نے پوچھا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ان کو لایا گیا ہے۔ تب فرشتے نے وہ دروازہ کھولا، یہ تھا پہلے آسمان کا دروازہ، اور اسی طرح وہ جب اوپر اٹھتے گئے دین دا سیکنڈ آسمان، وہاں پر بھی سیم سچویشن، سیم انٹروگیشن، پھر دروازہ کھولا گیا۔ کیسے ہم سوچ بھی سکتے، امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ ایک آسمان کے اوپر اتنی ہی بڑی دنیا، اور اس کے اوپر دوسرا آسمان اور اس کے دروازے، اور پھر اوپر، اور اس طریقے سے 7 آسمان۔ الحمدللہ، یہ اللہ کی کریشن جتنا پونڈر کرے، جتنا آیتوں اور حدیثوں پر ہم غور و فکر کریں گے، انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی بڑھے گا، ہمارا غور و فکر، اور یہی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان میں اس طرح اضافہ کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔